Good morning, everyone. तो कल ये क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग. Did you try, all of you? Okay. So first discuss this question. Okay, I'll send the PDF. Don't worry. Okay. So आप में से कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया ये सब क्वेश्चन? हेलो. चलो we'll discuss then. तो जैसा कि मैंने बताया आपको, ये जो ब्लॉक है इस पे जो फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का. तो ये जो 20 kg का जो ब्लॉक है, राइट, 20 kg का ब्लॉक, इसका टेंडेंसी इधर जाने का है, टेंडेंसी. The tendency of 20 kg block is to move towards right. Okay, so 50 participants हो गए. We'll discuss this. So it's already 9:10. So the tendency of this is to move in this side. This is the tendency. इधर जाने का tendency. Why? Because of this force. So with respect to A के respect, A च्या respect मध्ये B ची tendency तिकडे जायची आणि फ्लोर च्या respect मध्ये पण B ची tendency तिकडे जायची. म्हणून स्टॅटिक फ्रिक्शन जर आपण कन्सिडर केलं that they move together, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ये बी पे एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा. ये F1, ये F2. ये बी पे, ए पे उसका रिएक्शन आगे लगेगा F1 और फ्लोर पे आगे लगेगा F2. So what is F1? F1 is the
friction between F1 is the friction between A and B. And what is F2? F2 is the friction between B and floor. Okay. Okay. Did you understand this diagram? So did you understand the direction of friction? The tendency is to go this side, so the friction will oppose the tendency. Okay. So did you understand the direction? Tell me that first. So what about others? There are 51 students. Okay, good. So we have understood direction of friction. Now let us write down the values of friction. Okay. So here we will write F1S and F1K value we will write down. And here we will write down F2S and F2K. Okay. So let us write down the values. So F1S के लिए you will need this normal reaction, this one. And F2 के लिए you will need this normal reaction. So these values you can find out very easily. The value of N1 will be 100 because this normal has to support only 10 kg. And N2 will be 300 because N2 has to support 30 kg. This will be 300 Newton. Okay. So F1S will be mu S, ये वाला 0.5 mu S N1. So I'm directly writing because you can understand. It will be 50. F1K will be mu K into N1. That is 0.3 into N1, that is 100. That will be 30. F2S will be 0.2, this one, 0.2 into the normal reaction N2. N2 is 300. So this will be 3 to the 6, 60 Newton. And F2K will be 0.15 into 300. So that will be 45 Newton. Did you understand till this point the values of friction? आपण काय केलं, आपण फक्त काढून ठेवलं आहे कारण आपल्याला तिची गरज आहे नंतर, म्हणून आपण काय केलंय त्याला काढून ठेवलंय. ठीक आहे. आता कोणता फ्रिक्शन लागणार ते आपल्याला माहित नाहीये, ते आपल्याला बघावं लागतं. We'll have to see that. पण नंतर बघल्यानंतर आपण काय आपल्याला जे व्हॅल्यू पाहिजे ते आपण यूज करू शकतो. सगळ्यांना समजलं का इथपर्यंत? कारण 51 पार्टिसिपेंट्स आहे, मला काय जास्त यस मिळत नाही. कमीत ते कमी 30 ते 35 यस तरी पाहिजे. Okay. Now we'll come to step number 1. Very good, very good. Chalo. Now I'll come to step number 1. So step number 1 क्या है? Step number 1 is we'll assume A plus B as a system. A plus B as a system म्हणजे काय? We assuming that they move together, that they are moving together. Okay. So this is what we are assuming.
So if they are moving together, F1 will become internal force, because A plus B के जो बीच का जो फ्रिक्शन है वो F1 है, it will become internal. F2 will not be internal, F2 will be external, because F2 external होणार कारण F2 कोण लावतोय, F2 फ्लोर लावतो आणि आपण फ्लोरला सिस्टम मध्ये कन्सिडर केला आहे का? आपण फ्लोरला सिस्टम मध्ये कन्सिडर नाही केलं. म्हणून F2 काय होणार, F2 होणार एक्सटर्नल. ओके, F2 will be the external force. Okay, now A plus B, the total mass will be how much? 30 kg. So you have taken this is 30, and this is the force 100 Newton, which is external force, and this is friction. So if you see the value of friction, the friction ka static jo value hai, its value is 60, and this is 45. K, kinetic is 45. So we can see that 100 Newton is greater than the static value. Therefore, the block will not be at rest. Since the external force is greater than F2S max, so the blocks will be in motion. Will be in motion or relative motion with respect to floor. Okay, will be in relative motion or motion with respect to floor. With respect to floor. So kinetic friction will act. This will act. So what will happen? So kinetic friction will act. So your diagram will be, this is 30. This is F is equal to 100. And this will be Fk is equal to 45. This is plus, this is minus. Summation of net force is equal to mass into acceleration. 100 minus 45 is equal to 38. So 55 is equal to 38. So A is equal to 55 by 30. Did you understand till this point? Did you understand till this point? This is step number 1. Okay, there are 54 participants. At least give me some 50 yes. Okay. Some students are very lazy. They don't want to type yes. So you can just type Y, okay, if you are lazy. If you're lazy, you can just type Y. Okay. Okay. So we have some lazy bums there. Lazy students. Okay. So this is our step number 1. Now let us see step number 2. So this is the acceleration which we have got after our assumption. आपण हा assumption केल्यानंतर, हा assume केल्यानंतर आपल्याला हा acceleration भेटले. आता आपल्याला हा verify करावा लागतो आहे ना. स्टेप नंबर 2 मध्ये आपण काय करणार, व्हेरिफिकेशन. Step number 2 is verification. So let's do the verification. Okay. So how to do the verification? So for that we'll have to take either A as a system or B as a system. So let us take A as a system. You can take B as a system. I'll show you both. So if you take A as a system, तो A पे फ्रिक्शन कहाँ लगने वाला है, क्योंकि B पे पीछे लग रहा है तो A पे आगे, वो मैंने बताया था आपको. तो आप you will find out Fs required. Okay. So let us find out Fs required. इसका acceleration कितना है, 55 by 30. Mass कितना है, 10 kg. So what will you write? You will write summation of net force is equal to mass into acceleration. So net force will be only one. X k along there is only one force, that is Fs required. Mass is 10. Acceleration is 55 by 30. This will be 55 by 3. 318 the 54.
सो 18.3. नाव आता आपल्याला काय बघायचं आहे, एफएस मॅक्स. एफएस मॅक्सचं व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे, व्हॅल्यू आहे 50 न्यूटन. तर एफएस रिक्वायर्ड इज लेस देन एफएस मैक्स. क्या ये हो सकता है? इज इट पॉसिबल? इज इट ओके? चलेगा क्या? असं चालणार का? चालेल का? Yes or no? Come on, everyone, respond. Don't be lazy. हाँ? असं चालणार का? चलेगा 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 चलेगा. So we have one lazy boy. He's written why. हमें. Okay. Oh. ओके. सिर्फ 15-20 लोग यस लिखते हैं, बाकी लोग बस ये सोचते हैं कि हाँ चलो बाकी लोग तो लिख ही रहे हैं. हाँ मतलब वो तकिया वकिया लगा के बैठे हैं, ऐसे बेड पे आराम से तकिया वकिया लगा के बैठे हैं. ठीक है, चलो क्या करें, करे तो क्या करे. ओके, तो यस इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है. यस इट इज पॉसिबल. Possible, it is possible. Therefore, the blocks will move together. Therefore, our assumption is correct and the blocks will move together. Therefore, the blocks will move together. Right? Our assumption is correct. Okay? Because 18.3 है और ये 50 है, so this is possible. Right? Because static friction is self-adjusting. Okay, अगर आपने B को लिया होता, कैसे होता फिर देखो. थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता आपको. थोड़ा सा ज्यादा मेहनत, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है एफ के कितना है 45, यहाँ लगता है F1S रिक्वायर्ड. ना आप बी को भी ले सकते थे सिस्टम, आई एम जस्ट शोइंग यू दैट. और ये है 100, ये है 20, एक्सेलरेशन है 50/3, सॉरी 55/30. कितना एक्सेलरेशन 55/30. ये प्लस, ये दोनों माइनस. हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ये वाला प्लस यानी 100 माइनस 45 माइनस F1S रिक्वायर्ड इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो ये होता 2, ये होता 3, मतलब ये होता 110/3. ठीक है, और ये होता 55. So 55 minus F1S required is equal to 110/3. So we'll have to solve this. इसको solve कर लेते हैं. तो F1 तो भी वही आंसर आता है. I'm just showing you. मी तुम्हाला फक्त हा दाखवायचा प्रयत्न करतोय की जर आपण A घेतला किंवा B घेतला, F1S रिक्वायर्डचा व्हॅल्यू तोच येणार आहे. हा फक्त हा मी तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न करतोय. तो ये हो जाता है, F1S रिक्वायर्ड हो जाता 55 माइनस 110/3. इसको आप सॉल्व करोगे, ये 55/3 आएगा, यानी सेम जो पहले आया था वही. समजलं सगळ्यांना? डिड यू अंडरस्टँड? इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क. कारण हा खालचा F2K आहे ना, F2K, तर त्याचं व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला, F2K चं व्हॅल्यू. कारण हे तर आता फिक्स आहे की खाली एक कायनेटिक फ्रिक्शन लागणार आहे. ठीक है, तो गिव मी 56. यस, कुछ लोग बहुत लेट कनेक्ट होते हैं. ठीक है, कुछ लोग 20-20 मिनट बाद कनेक्ट होते हैं. दैट्स रियली वेरी बैड. खूप वाईट आहे हा गोष्ट. मी 8:55 ला कनेक्ट होतो आणि काही स्टुडंट 9:15, 9:20 पर्यंत कनेक्ट होतात. तर हे खूप चुकीचं आहे.
असं व्हायला नको दाखवा. Okay, give me a 56. Yes, come on. Okay, I think you have a doubt. If you have a doubt, you can ask. इथपर्यंत कोणाला डाईट इथपर्यंत? हॅलो, कोणाला काही डाऊट आहे का? लवकर सांगा यार. अच्छा, आई थिंक आप बोल रहे हो लेकिन मैंने ये स्लाइड नहीं किया. ओके, नो डाउट. ओके, वेरी गुड. चलो ठीक है, वेरी गुड. तो ये हो गया स्टेप 2, मतलब वेरीफाई हो गया. तो ये करेक्ट है, इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन है, दोनों का एक्सेलरेशन है 55/3. तो ये सॉल्व हो गया. ठीक है, वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन. ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? सो प्लीज नोट इट डाउन. हियर आर फर्स्ट वाला. Everyone, please note this down. Everyone, please note down. सगळ्यांनी लवकर लिहा. त्याच्यानंतर HCV चा डाऊट आपण डिस्कस करू 20 पर्यंत. आणि सगळ्यांनी सगळ्यांनी हा डायरेक्शन म्हणजे हा डायग्राम काढा तुम्ही. त्याच्यामध्ये डायरेक्शन दाखवा. हा पण इम्पॉर्टंट आहे. हा आहे फर्स्ट स्लाइड. ऍक्च्युली हा आहे फर्स्ट स्लाइड. तर इकडे आपण जे लिहिलंय F1, F2, N1, N2, F1S, F1K, F2S, F2K हा सगळे लिहून घ्या तुम्ही. ओके. आणि हा सेकंड स्लाइड झाला का? सेकंड स्लाइड सगळ्यांचं? हे पण झालं ना सेकंड स्लाइड? ओके. आता थर्ड स्लाइड, लास्ट स्लाइड. ठीक आहे. आता लास्ट स्लाइड लिहून घ्या.
मागच्या स्लाइड मध्ये फर्स्ट फिगर एक्सप्लेन करा. आप लेट ज्वाइन हुए हो क्या ओमकार? ओमकार आप लेट ज्वाइन हुए हो क्या? अगर आप लेट ज्वाइन हुए हो तो फिर मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि तब आप बाद में वीडियो देख लेना, तो रिकॉर्डेड यहाँ पे आ जाएगा. क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 बार पूछा था, कोई डाउट है, कोई डाउट है. ठीक है. ठीक है. तो जब मैं पूछ रहा हूँ 10 बार डाउट है, तो तब बोलना चाहिए ना आपको. आप अगर लेट ज्वाइन हो रहे हो तो प्लीज आप वो डाउट मत पूछिए, आप बाद में वीडियो देखिए रिकॉर्डेड में. ओके. सो नाउ विल डिस्कस HCV. ओके. सो 1 to 20 में अगर कोई भी डाउट है आपका तो आप बोलिए, विल डिस्कस दैट. ठीक है. कोई भी डाउट हो, छोटा से छोटा डाउट भी आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपको लगे छोटा बड़ा जो पूछना है. ठीक है. चलो आप फटाफट अपने डाउट्स पूछ लो आप. 1 to 20 में हम जो भी डिस्कस करना है मैं कर देता हूँ. उसके बाद आपके पेपर के एक दो डाउट पूछ लेना. ठीक है. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. ओके, विल डिस्कस 6. चलो, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6. ओके ओके, 6, 7, 18 and 20. Pranav, yesterday's lecture was not uploaded. Okay, that you have to find out from Sujay sir. Sujay, you call him. He is the in charge. A PDF I'll send. Okay, PDF I'll send. आप कॉल करो सुजय सर को. Okay, so we have got few questions here. That is question number 6 का A, 7, 18, 20, 11, 15, 16, 19, 13. ओके. तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए आप लोगों ने. चलो विल डिस्कस वन बाय वन. लेट अस स्टार्ट विद 6th A. ओके. तो 6 क्वेश्चन में आपको दिया गया है, आपको इसमें दिया गया है कि एक ब्लॉक जो है ऐसा है, ये 2 kg का ब्लॉक है, और ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है.
So you have to find the force. You have to find the force required to make the block move up. So let us do the first part. We have to find the value of F such that the block starts to move upwards. Okay, आपको म्यू दिया है 0.2. So the block has to move upwards, right? Then the friction का tendency क्या होगा? Friction will act downward. और जो mg है, mg का ये कंपोनेंट भी डाउनवर्ड होगा, mg sin थीटा, और ये होगा mg cos थीटा, और ये होगा नॉर्मल. ये डायग्राम क्लियर है? इज दिस डायग्राम क्लियर? इज दिस डायग्राम क्लियर? जल्दी जल्दी यस बोलो, जल्दी जल्दी यस. Because the block has a tendency to move upwards, the friction will act downward. Okay, so it just starts moving upwards. That means what? That means limiting friction will act. Limiting friction will act. That means Fs max will act. Fs max will be mu n. So mu and n will be mg cos theta. N will be mg cos theta. So it will be mu mg cos theta. This will be Fs max. Okay. Okay. तो ये फोर्स का वैल्यू बढ़ते 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 इतना हो गया है कि उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है. फ्रिक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग टू Fs max. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद द ब्लॉक विल स्टार्ट टू एक्सेलरेट. मतलब उसके बाद क्या होगा? सो एट दिस पॉइंट the summation of net force will be slightly greater than equal to 0. Slightly greater than 0. Slightly greater than 0. Slightly greater than 0. इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसलिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे समेशन ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल टू MAX और AX को लेंगे 0. तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएगा. ठीक है, जो फ्रिक्शन आपको दिख रहा है ये फ्रिक्शन वाला माइनस और mg sin थीटा माइनस, ये दो माइनस. तो ये हो जाएगा F माइनस Fs माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू 0. तो F माइनस Fs क्या है? Fs है म्यू mg cos थीटा और ये है mg sin थीटा इक्वल टू 0. सो F इज इक्वल टू, तो आपको वैल्यू डालने पड़ेंगे. म्यू का वैल्यू 0.2 है, m का वैल्यू 2, g का वैल्यू 10, cos 30 is रूट 3/2, m का वैल्यू 2, g का वैल्यू 10, sin 30 का वैल्यू हाफ. तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट 3 प्लस 10, so almost 13.4. Any doubt? Did you understand? Yes or no? Did you understand the first part? Everyone? देखो, जैसे आप F का वैल्यू बढ़ाओगे ना, F का वैल्यू, ये जो फोर्स है, ये फोर्स को आप इंक्रीज करोगे
तो फ्रिक्शन विल ट्राई टू अपोज इट, और फ्रिक्शन भी धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते वो मैक्सिमम हो जाएगा। जब वो मैक्सिमम हो जाएगा तो समेशन ऑफ नेट फोर्स हो जाएगा 0। ठीक है, मतलब पहले से है, अभी भी 0 है, लेकिन फिर इसको आपने थोड़ा सा और बढ़ाया, तो ये समेशन ऑफ नेट फोर्स होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये ब्लॉक मूव करने लगेगा, स्टार्ट टू मूव। So to find the critical value, to find the critical मतलब border line वाला, to find the critical value we will take summation of net force equal to 0, and we will take friction is equal to mu m। ये दो अगर हमने लिया तो we will get the critical value, we will get the value of force for which the block will start moving। Okay, this is the first part, that's why we have taken summation of net force equal to 0। Okay, any other doubt? Any other doubt? Okay, no doubt, chalo, let us do the B part, we'll do the B part of it। 6B में क्या बोला है, डाउन द इंक्लाइन। सो फर्स्ट वी विल चेक ये mg sin थीटा कितना है। सो mg sin थीटा का वैल्यू है 2 into g is 10 sin 30 is half, दिस इज 10, mg sin थीटा 10 आ रहा है। एंड वी विल चेक fs max, fs max is mu mg cos theta, mu n, mu is 0.2, m is 2, g is 10, and sin 30 is root 3 by 2, so it will become 2 root 3। So we can see that static friction का जो maximum value है वो 2 root 3 है। So start तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो mg sin थीटा है वो तो स्वतःहून फ्रिक्शन ला ओवरकम करू शकतो स्वतःहून, राइट। mg sin थीटा is greater than fs max, so the block will automatically move down, so the block will automatically move down, there is no need of there is no need of any force। Did you understand this, everyone? क्वेश्चन में पूछा था कि डाउन डाउन द इंक्लाइन मूव करने के लिए एफ कितना चाहिए, एफ, तो यहाँ उसका जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ दैट एफ, क्योंकि डाउन द इंक्लाइन जो mg sin थीटा है दैट इज ऑलरेडी ग्रेटर देन fs max, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा, देयर इज नो नीड टू पुश इट। ओके, व्हाट इज योर डाउट, टेल मी। Okay, done, sixth is done। Now let us discuss question number 7। So we'll discuss question number 7, okay। Repeat part A if the push is applied horizontally and not parallel to the incline. So I will send this PDF 100%, okay?
वेदर इज यू हैव, बिकॉज आपने इतने डाउट्स पूछे वो डिस्कस ही नहीं हो पाएंगे. यू हैव आस्क्ड सो मेनी डाउट्स. Okay. So let us take this question number 7. Yeah. So वो बोल रहा है आपसे कि जो फोर्स है ना, वो फोर्स ऐसा लगा रहा है, हॉरिजॉन्टल, ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं. हॉरिजॉन्टल. तो अभी ये एंगल कितना है? 30. ओके. तो हम लोग एक कंपोनेंट इधर लेंगे, इधर, और एक कंपोनेंट इधर लेंगे. ठीक है. ये एंगल कितना है? 30 डिग्री. ये क्या होगा? ये होगा एफ कॉस 30. और ये क्या होगा? ये होगा एफ साइन 30. ठीक है. और जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन का टेंडेंसी है नीचे लगने का, तो ऐसा लगेगा फ्रिक्शन. ठीक है. तो फिर से हमें क्रिटिकल क्रिटिकल वैल्यू निकालना है. हमें क्या निकालना है? क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एफ. क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एफ निकालना है. क्रिटिकल वैल्यू मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फॉर विच द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फॉर विच द ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट टू. ओके. तो इसके लिए हम फ्रिक्शन को क्या लेंगे? मैक्सिमम लेंगे, क्योंकि क्रिटिकल क्रिटिकल कंडीशन में फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा. अच्छा, और क्या लग रहा है इधर? नॉर्मल लग रहा है. और इधर क्या लग रहा है? mg, और ये mg के कॉम्पोनेंट्स. ठीक है. तो ये भी 30 है, तो ये हो गया mg cos 30. और ये हो गया आपका mg sin 30. अब आप क्या करोगे? अब आप स्टेप नंबर 1 करोगे. यू विल फाइंड नॉर्मल रिएक्शन. So you will use summation fy is equal to may. ये ay कितना है? 0, because it is not moving along y. तो summation fy में क्या क्या होगा? Normal will be plus, normal will be plus, f sin 30 will be minus, and mg cos 30 will be minus. So you'll write m minus f sin 30 minus mg cos 30 is equal to 0. n minus sin 30 is half, and m is 2, g is 10, cos 30 is root 3 by 2. ये हो जाएगा n is equal to f by 2 plus 10 root 3. ये हो गया स्टेप नंबर 1. ठीक है. अब स्टेप नंबर 2 में ये तीन फोर्सेस है, f cos 30, mg sin 30 और फ्रिक्शन. तो इनका सम 0 होना चाहिए. ठीक है. वो है स्टेप नंबर 2. तो लेट अस टेक स्टेप नंबर 2. So step number 2 will be summation of net force along x is equal to max, ax is equal to 0. ये हो जाएगा आपका सेकेंड स्टेप. तो ये वाला प्लस ले लो, f cos 30 प्लस mg माइनस ये माइनस फ्रिक्शन माइनस. तो ये हो जाएगा f cos 30 माइनस फ्रिक्शन
माइनस एम जी साइन 30 इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा जगह कम है इधर। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है, म्यू एम जी कॉस 30, म्यू एम जी कॉस 30। तो म्यू एम जी कॉस 30 और ये है एम जी साइन 30। सॉरी सॉरी, ये गलत हो गया। फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एम जी नहीं है, म्यू एन है, और एन आपको डालना पड़ेगा इक्वेशन 1 से, इसलिए हमने एन पहले फाइंड आउट किया था। ठीक है, फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा म्यू एन माइनस एम जी साइन 30 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है। कर लोगे सब लोग, ये दो इक्वेशन सॉल्व करके निकालना है, कर लोगे, कर लोगे क्या? ठीक है, तो एक ये एन का, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। एन का वैल्यू इसमें डालना है, इसमें इस वाले इक्वेशन डालना है। ठीक है, और एफ डालना है, वो डालकर आपको क्या करना है, एफ निकालना है। तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी सेवेंथ हो गया। अब आते हैं हम लोग 11th पे। ठीक है, 11th डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर। तो आपको ये दिया है, ये दो ब्लॉक्स दिए, ये 1 kg का, ये 1 kg का, म्यू 0.2 दिया है, और ये भी 0.2, और ये आपको दिया है 0.5। Calculate the acceleration of the 1 kg block. Calculate the acceleration of the 1 kg block. The acceleration of 1 kg block निकालना है, tension in the string connecting 1 kg block. तो ये तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, इट इज वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पता है दो स्ट्रिंग है, तो इसमें टेंशन मान लो T1। ठीक है, T1, इसमें मान लो टेंशन T2। ठीक है, और इस सिस्टम का एक्सेलरेशन मान लो a। ठीक है, तो यहाँ जो फ्रिक्शन का वैल्यू आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का, वो आएगा म्यू एन। एन का वैल्यू हो जाएगा 1 kg है, तो 1 kg के लिए ये नॉर्मल हो गया, एम जी हो। तो स्टेप नंबर 1 इज फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। तो वो आएगा 1 × 10 यानी 10, वो हो जाएगा 2। और यहां से आपको मिल जाएगा, यहाँ भी वही मिलेगा 2 न्यूटन। ठीक है, तो अब आप इसको ए ब्लॉक बोल लो, इसको बी बोल लो, इसको सी बोल लो। ठीक है, इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा।
आपको बस तीनों के इक्वेशन लिखने हैं, तो सी से स्टार्ट कर लो। तो सी का क्या होगा देखो, तो फॉर सी क्या होगा, सी के लिए ऊपर टी है, नीचे एम जी लग रहा है, यानी 0.5 जी, यानी 0.5 इंटू 10, नीचे का एक्सेलरेशन ए, ये प्लस ये माइनस, ये है 5। तो आप क्या लिखोगे, 5 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 0.5 है, ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप जो है अब आप ले लो बी ब्लॉक और बी। तो बी के लिए क्या हो रहा है, बी के लिए इधर टेंशन लग रहा है T1, इधर लग रहा है T2, इधर एक्सेलरेशन ए है, मास 1 है, ये प्लस ये माइनस, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब आप लिख लो फॉर ब्लॉक ए। तो ए ब्लॉक जो है उस पे सिर्फ T2 लग रहा है। अच्छा एक गलत हो गया, यहाँ पे फ्रिक्शन भी तो लग रहा है, फ्रिक्शन को तो हम भूल ही गए, तो फ्रिक्शन भी तो लगाना पड़ेगा। तो हमारा एफबीडी थोड़ा गलत हो गया यहाँ, है कि नहीं। तो आपको फ्रिक्शन भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो पीछे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और इस पे भी पीछे का लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, तो ये हो जाएगा T2 माइनस एफ के इज इक्वल टू मास इंटू। तो आई थिंक आप लोग सॉल्व कर सकते हो ये तीनों इक्वेशन को, क्योंकि क्योंकि दोनों केस में एफ के का वैल्यू 2 ही है। सॉल्व कर लोगे क्या, कर लोगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, 11th हो गया, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे हम लोग 13th। तो 13th पे आ जाते हैं। 13 पे आपको दिया है, अरे ये तो बहुत आसान सवाल है यार, ये कौन पूछ रहा है भाई ऐसे सवाल से। अरे प्रणव, उसको सॉल्व कर लो ना, एक्सेलरेशन आ जाएगा, तीनों का एक्सेलरेशन सेम है, उससे एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, टेंशन T2 भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। ओए प्रणव, ओए प्रणव की बोल रहा है भाई, ओए की बोल रहा है भाई। अरे तीन इक्वेशन है, अननोन है, तीन अननोन सॉल्व कर लो, आ जाएगा, उसमें क्या है, ठीक है। अरे एक प्रीवियस स्लाइड क्यों चाहिए, मैं भेज रहा हूँ ना पीडीएफ। शुभम दत्तात्रेय, मैंने बोला ना पीडीएफ भेज रहा हूँ। मैं स्लाइड दिखाते रहूंगा, सवाल कब सॉल्व करूंगा। हाँ इतने डाउट पूछे तुम लोगों ने, आसान आसान सवाल भी पूछ रहे हो, और फिर बोल रहे हो स्लाइड दिखाओ। देखो, तो 13th क्वेश्चन देखो, ये सब सवाल तो खुद ही होने चाहिए यार, अगर ये सवाल नहीं हो रहा तो फिर तो गड़बड़ है मामला, मामला गड़बड़ है, ठीक है, बहुत गड़बड़ है तब मामला। तब मतलब आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, मतलब आप चाहते हो कि सारा होमवर्क मैं ही करूं, और आप बस कॉपी कर लो उसको। हम्म? ये सवाल किसने पूछा है, नाम बताओ थोड़ा। अभी कोई नहीं बोलेगा नाम, अब जब बोलूंगा नाम बोलो तो कोई नहीं बोलेगा। किसने पूछा है भाई, ये सवाल किसने पूछा है, कौन है वो महान व्यक्ति।
तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है वो 0.2 दिया है। तो मान लो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन ये इधर ए और इधर ए, और टेंशन मान लो इसमें टेंशन T1, तो इसमें भी T1, इसमें टेंशन T2, तो इसमें भी T2। तो इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिए ये होगा 15G, यानी 15 × 10। तो ये प्लस ये माइनस, तो आप क्या लिखोगे, पहला इक्वेशन आप लिखोगे 150 - T1 = 15 है। ये हो गया पहला। अब इसके लिए इसको ए बोल दो, ये हो गया फॉर ए। अब फॉर बी लिखते हैं, ये वाला बी है, तो एक्सेलरेशन इधर है इसलिए ये T1 प्लस हो जाएगा, T2 माइनस हो जाएगा। और वो इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन का लगेगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, फ्रिक्शन। तो ये रहा ब्लॉक, ये है T1, ये है T2, ये है फ्रिक्शन, ठीक है, और ये है एक्सेलरेशन, ये प्लस ये दोनों माइनस। क्या लिखोगे, T1 - Fk - T2 = ma। Fk क्या होगा, Fk होगा μn, ma क्या है 5a। म्यू का वैल्यू कितना आएगा, mg आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो 5 kg है ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे लग रहा है 5g, ठीक है। नॉर्मल इज 50, तो म्यू इंटू 50, म्यू कितना है, म्यू है 0.2, ये हो गया 50, ये हो गया T2, ये हो गया 5a, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, समझ में आया। अब ले लो थर्ड ब्लॉक, ये वाला, इसको सी बोल दो। थर्ड ब्लॉक का इक्वेशन क्या होगा, तो थर्ड ब्लॉक के ऊपर लग रहा है T2, नीचे लगेगा 5 × G50, और एक्सेलरेशन है ऊपर a, तो ये प्लस ये माइनस, T2 - 50 = 5। तीन इक्वेशन, तीन अननोन, कर लोगे, कर लोगे। 13 हो गया, अब आ जाओ 15 पे, ठीक है। तो 15 में क्या है, तो एक एथलीट है, ये इसका शूज है, ठीक है। तो जो एथलीट है उसके इधर जो म्यू का वैल्यू दिया है, म्यू का वैल्यू वो दिया है 0.9। अब बोला है सुपरमैन, हाँ, तो सुपरमैन कौन है, सुपरमैन जो है वो आपको पता है, ये सुपरमैन सिर्फ चड्डी पहनता है, ठीक है, तो ये सुपरमैन आ गया। ओके, सुपरमैन,
हाँ, ठीक है। तो अब आप खुद सोचो कि अगर जो सुपरमैन है, अगर उसने भी यही शूज पहना, सेम शूज, तो म्यू का वैल्यू चेंज होगा क्या? क्या म्यू का वैल्यू चेंज होगा? होगा या नहीं? सोच के बोलना, सुपरमैन है। अरे, सिर्फ एक बच्चे ने बोला नहीं होगा। So mu will not change। इसके लिए भी म्यू क्या रहेगा? 0.9। पहली बात तो ये, ठीक है, पहली बात तो ये है कि तू जो, ठीक है, ओके। एंड रेसेस फॉर 50 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस जो दिया है वो दिया है 50 मीटर का, ठीक है, वो भाग रहा है। देयर इज नो अपर लिमिट ऑन हिज कैपेसिटी ऑफ रनिंग एट हाई स्पीड्स, ठीक है। तो वो मैक्सिमम कितना दौड़ पाएगा? देखो, जब हम दौड़ते हैं तो होता क्या है, सुनो ध्यान से सुनो। जब हम लोग दौड़ते हैं तो हम जमीन को पीछे धक्का मारते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जमीन को पीछे धक्का मारते हैं। ये जो फ्लोर है ना, हम फ्लोर को पीछे पुश करते हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ऑन द फ्लोर, तो फ्लोर क्या करता है? तो फ्लोर हम पे आगे फोर्स लगाता है, आगे। तो जो फ्लोर है, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया। दिस इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फ्लोर बाय मैन, ऑन द फ्लोर बाय मैन, वो पीछे है। एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑन द मैन बाय फ्लोर, वो आगे है। और हम इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाते हैं, तो वो भी हम पे नॉर्मल रिएक्शन। तो ये दो फोर्स हम पे लगते हैं, इसलिए हम उछल उछल के दौड़ते हैं। इसलिए बच्चों, हम उछल उछल के दौड़ते हैं। कैसे दौड़ते हैं बताओ? कमेंट बॉक्स में लिखो। उछल उछल के दौड़ते हैं, उछल उछल। क्या बात है, आज सब ठंडे पड़े हो एकदम, कोई कुछ नहीं लिख रहा। एकदम ठंडे हो पड़ गए हो यार। थोड़ा चाय वाय पियो तुम लोग, चाय कॉफी थोड़ा। हाँ, क्लास के साथ साथ थोड़ा चाय कॉफी नाश्ता करो। अभी तो क्या घर पे हो, थोड़ा मजे करो। हाँ, उछल उछल के पियो चाय, ठीक है। उछल उछल के चाय पियो तुम लोग। चलो देखो, तो अच्छा ये बताओ, हम लोग जब दौड़ते हैं तो हम जमीन पे फोर्स कहाँ लगाते हैं, आगे या पीछे? हम जब दौड़ते हैं तो हम जमीन पे किधर फोर्स लगाते हैं, आगे या पीछे? पीछे 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 पीछे। गुड गुड गुड। हम जमीन पे पीछे लगाते हैं, हम जमीन पे फोर्स पीछे लगाते हैं, पीछे। और जमीन हम पे
जमीन हम पे आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, ठीक है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो जमीन जो मैक्सिमम फोर्स लगाएगा इस आदमी पे, सुपरमैन पे, जो सुपरमैन दौड़ रहा है, ठीक है, सुपरमैन जो दौड़ रहा है, ठीक है, तो सुपरमैन पे जो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, मैक्सिमम फोर्स जो लगाएगा अर्थ, मैन ड्यू टू फ्लोर, वो है फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, वो है एफ एस मैक्स। और एफ एस मैक्स कितना होगा, म्यू एस एन। म्यू एस कितना है, 0.9। एन कितना होगा, एम जी। ठीक है, तो summation of net force along x is equal to max. Net force along x is friction. m कैंसिल हो गया, ये आ गया म्यू जी। ये क्या आ गया, ये आ गया म्यू जी। तो ये आ गया वैल्यू म्यू एम जी, एम कैंसिल हो गया। तो यहां से अपने को क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। एक्सेलरेशन मिल गया म्यू जी। म्यू कितना है, म्यू है 0.9, जी कितना है, 10। तो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो चाहे सुपरमैन हो, चाहे ही मैन हो, चाहे बैटमैन हो, चाहे हनुमान हो, नहीं हनुमान ही कैन फ्लाई ऑल्सो, ओके, कोई भी हो, एक्सेलरेशन विल बी 9। ओके, फाइंड द मिनिमम टाइम ही विल टेक इन कंप्लीटिंग द 50 मीटर फ्रॉम स्टार्ट। तो उसका u 0 है, s है 50, एक्सेलरेशन है 9। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s कितना है 50, u कितना है 0, a कितना है 9, और ये t निकालना है, ठीक है। तो टाइम कितना आएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 10/3 सेकेंड। डिड यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया क्या। और बी, उसका बी पार्ट पूछा है, व्हाट मिनिमम टाइम विल इट टेक टू स्टॉप। तो उतना ही लगेगा ना, क्योंकि डिसेलरेशन भी उतना ही होगा, उससे उससे ज्यादा डिसेलरेशन नहीं हो सकता। व्हाट मिनिमम टाइम विल ही टेक टू स्टॉप, उतना ही लगेगा 10/3। क्यों, क्योंकि जब उसको स्टॉप होना होगा तो वो जमीन पे जो फोर्स लगाएगा, अब वो जमीन पे आगे फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन फ्लोर ड्यू टू मैन आगे होगा, इट विल बी फॉरवर्ड। तो जमीन उस पे फोर्स पीछे लगाएगी, फोर्स ऑन मैन ड्यू टू फ्लोर, यानी जो फ्रिक्शन है अब वो लगेगा बैकवर्ड।
ठीक है, तो ये भी मैक्सिमम म्यू एम जी हो सकता है। तो जो डिसेलरेशन होगा, डिसेलरेशन वो भी मैक्सिमम हो सकता है म्यू जी। कैसे आया म्यू जी? फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन भी म्यू जी मैक्सिमम। So A maximum is also mu g, or A minimum is also minus mu g. The acceleration will lie between minus mu g to mu g. यहाँ पे पॉजिटिव फोर्स, यहाँ पे नेगेटिव फ्रिक्शन। डिड यू अंडरस्टैंड? Did you understand? Did you understand? Did you understand? Okay, 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 okay. So now we have discussed 15 also. Now let us discuss question number 16. So question number 16 पे आते हैं। इस तरह से दिया है आपको। आपको दिया है कि ऐसा एक रोड है और ये दिया है 30 डिग्री, और यहाँ पे ये कार है। ठीक है, ये इधर ट्रैवल कर रहा है। कार का जो स्पीड दिया है आपको वो दिया है 21.6। और ये जो स्लोप दिया है, स्लोप स्लोप दिया है 12.8 मीटर। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन रोड एंड टायर, म्यू का वैल्यू दिया है आपको 1/2√3। आपको और आपको क्वेश्चन में बोला है कि वो कितना भी ब्रेक लगाए, वो कितना भी ब्रेक लगाए, यहाँ पे जो उसका फाइनल स्पीड है वी फाइनल, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 36। ठीक है, चलो दैट्स वेरी सिंपल नाउ। तो जब कार यहाँ पहुंचेगा और वो ब्रेक लगाएगा, तो उस पे जो फ्रिक्शन है वो पीछे लगेगा। तो ये हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है,
ओके, तो ऊपर लगेगा फ्रिक्शन क्योंकि वो ब्रेक लगा रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन लगेगा, गाड़ी स्लो डाउन हो रही है, और ये नीचे mg sin थीटा लगेगा। तो अब आप यहां से निकाल सकते हो क्या, यू कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप लिखोगे समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स, तो ये नीचे वाला जो mg sin 30 है वो हो गया पॉजिटिव, ये फ्रिक्शन हो गया नेगेटिव, तो फ्रिक्शन होगा म्यू एन, एन का वैल्यू है mg cos 30, ठीक है, वो हो जाएगा माइनस म्यू mg cos 30 इज इक्वल टू एम ए। तो एम 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 कैंसिल हो गया, ठीक है, जी का वैल्यू 10, साइन 30 का वैल्यू हाफ, म्यू का वैल्यू 1/2√3, जी का वैल्यू 10, cos 30 is √3/2 is equal to a। तो ये हो गया 5 माइनस, ये √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/4, 10/4 इज इक्वल टू ए, तो ये हो गया आपका 2.5। तो कम से कम इतना, ये जो है दिस इज द मैक्सिमम, ये एक्सेलरेशन मिनिमम रहेगा ही रहेगा, मिनिमम तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो फाइनल v निकालना है आपको, u का वैल्यू कितना है 21.6 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो आप, तो मीटर में कैसे कन्वर्ट होगा, ये 5/18 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 12.5, सॉरी 2.5, डिस्प्लेसमेंट कितना है 12.8, इससे जो v आएगा, इससे जो v आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा, तो इसको कन्वर्ट कर लो, मानो x आया, तो x इंटू 18/5 कर लो, किलोमीटर पर आवर में आएगा, और वो 36 आएगा, कर लोगे, लोगे लोगे कर लोगे क्या, ठीक है। तो 16 तक आज सब डिस्कस हो गया है, ठीक है, तो मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ, कल डिस्कस करेंगे 18, 19, 20, ठीक है, टुमारो विल डिस्कस 18, 19 एंड 20। आप लोग फिर से ट्राई करो उसको, ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई दिस, ठीक है। अब आपका होमवर्क रहेगा 21 से 27, कल का होमवर्क है आपका 21 से 25, सब लोग लिख लो, होमवर्क लिख लो, सगळ्यांनी होमवर्क लिहून घ्या, होमवर्क नोटेड HWN, ठीक है, मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ आज का। ओके, बाय बाय एवरीवन, ठीक है, आई एम सेंडिंग यू द पीडीएफ, डोंट वरी। अरे पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है।
चलो हो गया, डाउनलोड हो गया, मैं भेज रहा हूँ। ठीक है।